Hi everyone, hope you are doing well. So this is Chandan from the learning field, and I will share one very nice thing that is happened to my channel, which is that the Markov chain playlist. So I make the complete Markov chain series in I think 3 years ago. 3 years ago, and इट दिस प्लेलिस्ट एक्चुअली मतलब बहुत लोगों ने देखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट फास्ट जो मतलब लेक्चर सीरीज है वो 17K व्यूज है, मतलब 17,000 लोगों ने देखा है। देन थोड़ा थोड़ा कम के 3K 4K 5K ऐसे ऐसे लोग देखा है, मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट को ऑलमोस्ट 30 to 35,000 मीन्स टोटल पीपल ये प्लेलिस्ट को वॉच किया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट, एंड आई गॉट ऑल्सो वेरी नाइस कमेंट्स फ्रॉम दैट मार्कअप चेन प्लेलिस्ट। सो मार्कअप चेन में मैं अभी 3 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 3 साल पहले मार्कअप चेन का कंटेंट बनाया था, देन सम पीओक्यूज बनाया था, बट उसके बाद में मार्कअप चेन का वीडियोज ही नहीं बनाया। So almost after 3 years, I make this video, which is contains the two questions from CSNA December 2024 and June 2025, and these two questions are very crucial and very थोड़ा सा questions means क्या बोलूं मैं, कैलकुलेटिव भी बोल सकते हैं, थोड़ा भी हटके भी बोल सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा बहुत मिस कर जाओगे तो ये क्वेश्चंस रॉन्ग होने का चांस बहुत अच्छा था। And in these 2 years, two questions comes actually from 4.75 max, that is in part C. So no questions in part B comes in these two consecutive years, that is June 2025 and December 2024. So let's start to solve the questions, and I think will be very happy that I also very happy, and you will be very happy that I again come back to Markov chain and make videos on upload videos on Markov chain. Okay, so let's start with this question. So this question says that uh, consider the Markov chain with the state space 0 to 0, 1 to 2 uh, and transition probability matrix P. This is equal to this the probability matrix, that is 0, 1 and 2 and 0, 1 and 2. So let Pn be equal to Pij denote the instant transition probability matrix. Then which of the following statement are true? So this is a part C question, and very nice question. So first two options says about the P00 2 and P10 to the power n. So first if we see and I when I started my lectures in 3 years ago, first I teach you what? First I teach you the directed matrix. So 90% of the questions I said that the directed path or directed matrix or diagram, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो डायग्राम फास्ट डायरेक्टेड ग्राफ्स और ग्राफ्स, डायरेक्टेड ग्राफ्स में बनाने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ पर भी सेम चीज करूंगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा डायरेक्टेड ग्राफ। सो व्हाट इज द डायरेक्टेड ग्राफ? 0, 1 and 2, these are the three state space. So 0 to 1 with probability half, then 0 से 2 with probability half, then 1 to 0 and 1 to 2, 1 to 0 and 1 to 2 with probabilities corresponding 3 by 4 and 1 by 4, 3 by 4 and 1 by 4, and the last one 2 to 0, 2 to 1, 2 to 0, 2 to 0 with probability I think 3 by 4 and 2 to 1 with probability 1 by 4. So this is a directed graph of our corresponding transition matrix. Now here it is says P00 to the power 2 equal to 3 by 4. So what is the way of doing this? So it's a little calculative, but I always suggest that do with matrix multiplication when power 2 or power 3, because power 3 is little bit calculative, but we can do that. Okay, so because of 3 by 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लास 12 से कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन जस्ट पुट वन मैट्रिक्स हियर 0 1 by 2 1 by 2 3 by 4 0 1 by 4 एंड 3 by 4 1 by 4 एंड 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम ये फास्ट के लिए ओनली 0 0 है, तो ओनली एक करके भी हो जाएगा, बट यहाँ पर 1 0 है तो हम लोग वो भी करेंगे, मतलब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फास्ट केस में करूंगा, ठीक है। तो देखो 0 3 बाई कितना हो रहा है 3 by 8 and plus 3 by 8, so 6 by 8 एक्चुअली हो रहा है, फर्स्ट टर्म 6 by 8,
then so 6 by 8, this means this is the element, this is equal, actually p square equal to this, okay, and this is the 0 and 0th element, so that means p 0 0 to the power 2 इसका value is 6 by 8 which is equal to 3 by 4. So clearly option 1 is correct option. Now if we calculate this 1 0 to the power 3, so 1 0 element means which one? 1 0 means this element, so we need first this element and 1 0, then again we multiply this. So if we calculate this element, so 3 by 8 0 and what, since 3 by 8 प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे, तो 3 by 8 प्लस 0 प्लस 1 by 16, 1 by 16, and we can write this is 6 by 16, so that means 7 by 16. So this element is 7 by 16, and for P103, that means we need this P10, this element 1 0 and 3, again this P, so this is 0 1 by 2 1 by 2, 3 by 4 0 1 by 4, and 3 by 4 1 by 4 and 0. तो ये चाहिए होगा हम लोगों को, तो ये रो निकालना ही है, ठीक है। तो कैसे करूंगा देखो, 7/16, देन ये एलिमेंट कैसे आएगा यहाँ से, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ये शायद यहाँ पे 7/16 होगा, सॉरी, ये 7/16 होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके साथ इसका, हाँ, तो 0 3/4 3/4, ओके। सो इसके साथ होगा तो देखो 0 0 एंड 3/16, सो यहाँ पे होगा 3/16, एंड थर्ड वाला क्या होगा 3/8 0 0, ये होगा 3/8। नाउ ये इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 21 बाई, मीन्स इस रो के साथ इस रो का, तो ही आएगा P3310, सो 7 21 अपन 16 प्लस 9 अपन and what, sorry, this will be yes 9 upon 32, so this row and this row, okay, so this is 21 upon 64 plus 18 upon 64 which is equal to 39 upon 64, so ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को इसके अलावा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा आप डायरेक्टेड ग्राफ से भी कर सकते हो, वो कैसे, 0 से 0 2 स्टेप में कितना पॉसिबिलिटी है, एंड 1 से 0 3 स्टेप में कितना पॉसिबिलिटी है, ये है क्वेश्चन, दैट मीन्स 0 to 0 in 2 step, fine, so 0 to 0 means you can go that 0 to 1 and 1 to 0, ये एक स्टेप है, देन 0 to 2 2 to 0, ये एक स्टेप है। देखो इस दोनों के अलावा और किसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा। 0 से 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 0 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3/4, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ पे, एंड 0 से 2 मीन्स 3/4, एंड 2 से 0 2 से दिस इज 1/2, this is 1/2, sorry, just a second, this is 1/2, 0 से 2 and 2 से 0 again 3/4, so इसको मल्टीप्लाई करके ये दोनों को सम करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ही आएगा। सिमिलरली जो है 1 to 0 इन 3 स्टेप करोगे, 1 to 0 इन 3 स्टेप, दैट मीन्स 1 to 0 इन 3 स्टेप, जस्ट ए सेकेंड, 1 to 0 इन 3 स्टेप करोगे तो ये भी आएगा। देखो 1 से 0 तुम कैसे जा सकते हो 3 स्टेप में, 1 से 0, 1 से फास्ट 2 जाओ, 2 से फिर 0 जाओ, नो, 2 से फिर 1 जाओ, 1 से फिर 0 जाओ, ये 3 स्टेप में जा सकते हो आप। देन 1 से तुम किसमें जाओ, 1 से 0 जाओ, एक जा सकते हो, 0 से 2 जा सकते हो, 2 से फिर 0 जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जितना पॉसिबिलिटीज बनेगा वो फाइंड करके फिर प्रोबेबिलिटी निकाल के ये मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, ठीक है, और दूसरा भी पॉसिबिलिटीज है तो वो भी चेक करना पड़ेगा।
बट ये आपको पॉसिबिलिटीज एक भी छूट जाएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 3 मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको करना है वो सही है, बट इसमें आपका क्वेश्चन सही होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑलवेज गो थ्रू दिस ऑप्शन। Now option 3 says that the stationary probability that the chain state 2 is 2 upon 7. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सपोज स्टेट 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स पाई, सपोज पाई 0, पाई 1 एंड पाई 2 आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो देन यहाँ पे निकालना है पाई 2 का वैल्यू, यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो पाई 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पाई पी इक्वल टू पाई करोगे, सिंपल कैलकुलेशन, पाई पी इक्वल टू पाई, ठीक है। पाई पी इक्वल टू पाई करोगे एंड समेशन पाई दिस इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैलकुलेट करने से ही आपका आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका भी आंसर सही आएगा, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, बट ये जस्ट कैलकुलेशन पाई पी इक्वल टू पाई पुट करो एंड यहाँ पे आप कर लो, ठीक है। दैट मीन्स पाई 0, पाई 1, पाई 2 into the matrix given here, this is equal to pi, pi 1, pi 2, pi 3। सिंपली इसको करो एंड यूज दिस इक्वेशन, सॉरी पाई 0 1 2 होगा ना, 0 1 एंड 2 में जस्ट कैलकुलेट किया, पाई 0, पाई 1 एंड पाई 2, ये सम इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल यूज करोगे एंड सिंपल थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन है फ्रैक्शंस का, ये करोगे तो ये सही हो जाएगा। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज स्टेट 1 इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है, इसको समझने से ही इसका आंसर कुछ नहीं करना है आपको। ट्रांजिएंट मीन्स नॉट एक्सेसिबल एक्चुअली ना। देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ देखोगे, ऑल स्टेट आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, ये ग्राफ देख के ही आप बोल सकते हो कि ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट, सॉरी रिकरेंट नॉट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन सपोज यहाँ से तुम चले गए कोई एक स्टेट में, वहां से बैक आने का जगह ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब अनरीचेबल अगर होगा, नो ये नहीं, अनरीचेबल होगा स्टेट, तो ये हो सकता है आपको ट्रांजिएंट। बट यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ देख के ही आप बोल सकते हो कि ये ट्रांजिएंट स्टेट नहीं है। बट नाउ वी कैन गो थ्रू द थियोरेटिकल प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस। एक चेन में एक ये पढ़ाया था, ठीक है, ये एक चेन फाइनाइट होगा प्लस इरिड्यूसिबल होगा, इरिड्यूसिबल होगा, तो ये किसका इंप्लाई करता है, ये रिकरेंट को इंप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो एक फाइनाइट चेन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे स्टेट स्पेस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है 3 है, एंड ये स्टेट ऑब्वियसली इरिड्यूसिबल भी है। इरिड्यूसिबल मींस कैसे चेक कर सकते हो आप, मींस डी ऑफ 1 और लैम्डा ऑफ 1, लैम्डा ऑफ ईच स्टेट चेक करके, और डी मींस इसका पीरियोडिसिटी चेक करके ही आप बोल सकते हो, सॉरी इरिड्यूसिबल मींस ऑल आर कनेक्टिंग ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ देख के ही बोल सकते हो कि ये स्टेट भी, मतलब मार्कअप चेन पूरा के पूरा इरिड्यूसिबल है, मींस ईच स्टेट्स आर एक्सेसिबल, ठीक है, मतलब हर स्टेट से हर स्टेट्स का जाने का पाथ है, दैट मीन्स दिस इज इरिड्यूसिबल। सो ये इंप्लाई करता है पूरा चेन ही रिकरेंट है, तो वन स्टेट, स्टेट वन ट्रांजिएंट होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट इन दिस मार्कअप चेन, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बोला है कंसीडर द मार्कअप चेन, ये जून 2025 का क्वेश्चन है, एंड ये भी एक 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, कंसीडर द मार्कअप चेन दिस ऑन द स्टेट स्पेस 1 2 3 4 5, दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, ठीक है। तो ये इजीली देख के कर सकते हो, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम बनाओगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो 1 से 2 में जाने का है, 1 से 2 में 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 3 में जाने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। देन 2 से 1 2 3, 2 से 3 में, 2 से 3 में प्रोबेबिलिटी है 1,
देन 3 से 2 में, 3 से 2 में जाने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। ये शायद और एक 1/3 यहाँ पे होगा, ठीक है। देन 3 से 4, 3 से 4 का प्रोबेबिलिटी भी 1/3, एंड 3 से 5 का प्रोबेबिलिटी भी 1/3। देन 4 से ओनली 1 में कनेक्शन है, प्रोबेबिलिटी 1, एंड 5 से 5 प्रोबेबिलिटी 1। तो देखो 5 सेल्फ लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर सेल्फ लूप फॉर्म करता है विथ कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1, और इजीली मतलब कैसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, जो एब्जॉर्बिंग स्टेट का डेफिनेशन है, अगर डायगोनल में 1 होगा और बाकी एलिमेंट 0 होगा, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एब्जॉर्बिंग स्टेट। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल में 1 होगा तो, और वो रो में कोई भी मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर रो का रो सम या फिर कॉलम सम 1 होता है। नहीं तो ये टीपीएम ही नहीं बनेगा, ठीक है। रो सम या फिर कॉलम सम 1 होगा ही। कि बोथ हो सकता है, तो अगर हम क्या बोल सकते हैं उसको, डीएसएमसी, डबल स्टोकास्टिक मार्कअप चेन। अगर रो सम इक्वल टू कॉलम सम इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, समेशन समेशन, तो इसको बोलता है हम डीएसएमसी। सभी नहीं जानते हो। एंड टीपीएम होने का जो है वो है ओनली ये इस दोनों में से कोई भी एक होगा, तो यहाँ पे रोसा मोड है, ठीक है। एंड डायगोनल में 1 रहेगा, मींस ओनली सेल्फ लूप फॉर्म कर रहा है, तो वो होता है एब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। तो 5 तो एब्जॉर्बिंग स्टेट है, ये ट्रू है इसका पोर्शन। देन रिकरेंट है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या बोला, ये जस्ट पहले ये ही बोला कि फाइनाइट प्लस इरेड्यूसिबल चेन इंप्लाई करता है रिकरेंट स्टेट। तो यहाँ पे देखता है हर एक स्टेट से हर एक स्टेट जाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखो 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 3 से 4 में जा सकते हैं, 4 से 5 में जा सकता है। तो ये ऑल आर कनेक्टेड, मीन्स 1 से 5 डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट 1 से तुम 5 जा सकते हो, ठीक है। 2 से 5 तुम जा सकते हो, 3 से 5 तुम जा सकते हो, ठीक है। तो एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। बट ये नहीं कि 1 5 पॉसिबल मीन्स 5 1 भी पॉसिबल होगा, ये इसका डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। उल्टा तुम मत देखो, ठीक है। तो 1 5 पॉसिबल है, दैट मीन्स ये एक्सेसिबल है, फाइनाइट है, प्लस इरिड्यूसिबल भी है, तो दैट मीन्स ये रिकरेंट भी होगा, ठीक है। मतलब पूरा ही ये मार्कअप चेन रिकरेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ट्रू होगा। अदरवाइज यू कैन, हाउ कैन यू चेक, ये एक बोल सकते हो ये रिकरेंट होगा, और एक और कैसे बोल सकते हो तुम, देखो ऐसे बोल सकते हैं P55 समेशन P I5 समेशन P I5 I इक्वल टू 1 to 5। ये अगर 1 होता है तो बोलता है हम कि ये रिकरेंट है। ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट है, ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो I इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पुट करो, देखो इसका साम, ये मतलब इस रो का साम, ठीक है। P15 सॉरी 5 1 5 I5 नहीं, 5 J, तो J इक्वल टू 1 to 5, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, इसका सम क्या है, 1 है, दैट मीन्स ये स्टेट रिकरेंट है। तो ये यहाँ से भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये दिस इज मोर एक्यूरेट देन टू चेक द कंप्लीट मार्कअप चेन, ठीक है। तो एक स्टेट का ही बात बोला है, तो एक स्टेट हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दो, पांच पांच की जगह 5 और 6, 1 2 3, सपोज मोर देन वन स्टेट का बारे में बोल रहा है, तो कैसे चेक करोगे, चेन डायरेक्ट चेक कर लो, अगर चेन हो जाएगा तो स्टेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक सिचुएशन। एंड इसका जो डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन किया था, समेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पी आई जे इक्वल टू ये था आई जे। एंड यहाँ पे आप देखो 1, ये आप यहाँ पे बैठा मतलब पुट करोगे तो सपोज पाई 5 का बात कर रहा हूँ, है तो जे इक्वल टू 5 पुट करो, 1 2, नो ये इससे ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। तो P55 का प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक ये बोल सकता हूँ, तो मीन्स क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी P55, ये इसका मीनिंग क्या है, पाई 5, एंड इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 1, ओनली 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पाई 5 इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू था 1/μ5, ये जो था इसका डेफिनेशन ऐसा ही था, ठीक है। तो पाई 5 इक्वल टू 1,
दैट मीन्स स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एंड समेशन पाया इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1 है, एंड एक डायरेक्टली 1 ही आ गया तो बाकी तो 0 ही होगा ना, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ऑल स्टेट्स आर एपीरियोडिक, ये कैसे चेक करूंगा, देखो ये भी सिमिलर ही है। तो एक का पीरियोडिसिटी चेक करते हैं, डी ऑफ 1, इसका डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन था डी सी डी ऑफ 1 से 1 कितना स्टेट में पॉसिबल है। तो 1 से 1 देखो फर्स्ट, 1 से 1 एक स्टेप, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू सॉरी 4 से 1 था ना, सॉरी 4 से, ये मैंने गलत कर दिया, 4 से यहाँ पर ये था, 4 से 1 1 प्रोबेबिलिटी। सो 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1, 4 स्टेप में पॉसिबल है एक। देन 1 टू 2, 2 टू 3, ठीक है, 3 टू 4, 1 टू 3, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 2, देन देखो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में पॉसिबल है, 5 स्टेप में पॉसिबल है कि देखते हैं, 5 स्टेप में पॉसिबल है क्या। सो 1 टू 2 है, 1 टू 2, 2 टू जा सकता है तुम 4, या और दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, P2 3 इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ना। तो देखो 1 2, एक 2 3, देन 3 2, 2 टू 1 नहीं है ना, 3 स्टेप, देन 4 स्टेप, देन 5 स्टेप, 6 स्टेप में पॉसिबल है, एंड ये देन यहाँ पे आई थिंक 5 स्टेप में भी पॉसिबल है, हो रहा है क्या, आई थिंक ये होगा, क्योंकि देखो D5 का तो 1 होगा, ठीक है, D5 का एक ही है सेल्फ लूप, तो इसका 1 होगा, एंड 5 के साथ अगर 1 का कम्युनिकेशन है, ठीक है, 1 के साथ 5 का कम्युनिकेशन, 1 5 तो पॉसिबल है, दैट मीन्स 1 एंड 5 आर इन सेम स्टेट, ठीक है, तो दैट मीन्स 5 का 1 होगा तो 1 का भी 1 ही होगा, ठीक है, ये तो, एंड 5 से मीन्स ये एक ही स्टेट बन रहा है ना, तो एक का 1 आ जाएगा तो सबका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट क्लास फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये एक क्लास फॉर्म कर रहा है, ठीक है, those are communicating class, they are belongs to a single communicating class, ठीक है, that means एक का प्रोबेबिलिटी, एक का अगर पीरियोडिसिटी 1 है तो सबका 1 है, अगर ये सेम क्लास में होता है तो अच्छा, दो का देखता है एक बार, D2 का, D2 का देखो तो 2 से 2 कितना वे में पॉसिबल है, 2 से 3, 3 से 2, दो स्टेज में पॉसिबल है, देन 2 से 3, 3 से 4, 2 3 4, 4 स्टेप में भी पॉसिबल है, ठीक है, एंड देन 1 3, 1 3 3 2 3 4, 3 2 3 4 3 5, 3 2 3 2 3 4 3 5 एंड 5 5, यस, B5 का 1 है। यहाँ पे भी पीरियोडिक मीन्स पीरियोडिसिटी 1 होगा ना, तो 2 4, ये D2 का क्या होगा, 2 से 2 कितना स्टेप में पॉसिबल होगा, 2 3, 3 2, दो स्टेप में, 2 3, देन 3 4, 3 4, देन 4 1, हाँ ये देखो 2 3 आ गया, 2 3, देन 4, देन 1, देन 1 के पास 2 अगेन 2, ठीक है, एक दो तीन चार, ये एक पॉसिबिलिटी है, चार तो होगा ही, देन 2 2 3, 3 2 4, 4 2 1,
1 2 3 3 2 2 1 2 3 4 5, ये देखो 5 आ गया। दैट मीन्स इसका भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये सेम कम्युनिकेट क्लास फॉर्म कर रहे हैं, तो आप ठीक से देखोगे तो मतलब 4 5 तो होगा, तो इसके मीन्स इसका जीसीडी 1 ही है, तो ये आपका ऑल स्टेट आर पीरियोडिक एपीरियोडिक हो जाएगा। एंड P55 का वैल्यू ये तो मैंने पहले ही निकाल दिया, इसका वैल्यू 1 ही होगा, तभी ये 1 एंड 2 आर वेरी रिलेटेड। 1 एंड 4, ऑप्शन 1 एंड 4 आर वेरी रिलेटेड, ठीक है। ये सही होगा तो ये सही होगा ही, क्योंकि इसका ही डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। P लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी, P55 का वैल्यू 1 ही आएगा, एक ही है ना, तो 1 ही आएगा। तो ये था 2 क्वेश्चंस, बट ये थोड़ा लंबा है एंड थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, ठीक है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर का जो मार्क ऑप्शन का क्वेश्चन आया है वो धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी कितना बजा है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है, तो गुड नाइट। थैंक यू।